Hello everyone, I welcome you all in my grammar class, and today we are going to cover chapter 3. Let's learn adjectives. Okay, so what is adjective? Do you know? What are adjectives? Adjectives tell us what something is like. It means adjectives are describing words. They are the same in singular and plural, right? Means कि सब्जेक्ट का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है. दे कैन बी यूज बिफोर अ नाउन, और ये हमेशा नाउन के आगे यूज होते हैं. आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब के बाद में, लाइक शी इज गॉट लॉन्ग हेयर. तो व्हाट इज हेयर? हेयर क्या नाउन है. तो जो नाउन की क्वालिटीज़ को बताए, उसकी डिसक्वालिटीज़ को बताए, या फिर उसको डिस्क्राइब करे, दैट इज़ नोन एज एडजेक्टिव्स. नाउ दीज रोजेज स्मेल नाइस. ठीक है, तो अब ये रोजेस कैसे स्मेल करती हैं? नाइस. ओके. Adjectives can be factual, big, square, blue, etc., or express can an opinion, nice, beautiful, etc. All right. So these are. So let's begin the adjectives. Adjectives can be divided in many types, like adjectives of quantity, proper adjective, demonstrative adjective, adjective of quality, interrogative adjective, distributive adjectives, adjective of number. Like, look at this example. Sanya met a new girl in the class. She decided to write about her in the diary. Now she is describing how is Sanya. Okay. Today I met a sweet girl. So how was the girl? She was sweet. So what is sweet? Sweet is adjective. Her name is Riya. उसका नाम क्या है? रिया है. She had big black eyes. अब उसके eyes noun है, और noun को वो बता रही है कि कैसी आंखें उसकी, बड़ी और काली. And long hair, और hair कैसे उसके? long है. She was a well mannered girl. And which kind of girl is she? She is well mannered. She was also a brilliant student. Student is noun, and now very मतलब she is very careful. Which kind of girl is she? She is careful. Her nature is very friendly. All right. So observe the highlighted words. These words are adjectives. ठीक है, तो ये words कैसे हैं? Adjectives हैं. Now notes. Adjectives are words providing additional information or nouns or pronouns. पहली बात तो ये होती है कि nouns और pronouns के बारे में कुछ बताते हैं. They usually come before the noun or pronoun described, but this is not mandatory. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके पहले आए, ठीक है, उनका सीक्वेंस थोड़ा चेंज भी हो सकता है. The function of an adjective The function of an adjective is to describe a noun or a pronoun, whether it is placed before the noun or at another place in the sentences. Now look at these examples. China has the largest population in the world. तो population कैसी है उनकी? largest है. I like food that is spicy. ठीक है, तो food कैसा होना चाहिए? spicy. The girl had beautiful big blue eyes. ठीक है, so these are describing words. Okay. Now adjectives of quality. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी का मतलब जो मात्रा बताए, ठीक है. एडजेक्टिव विच शो द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. जब आप ये क्वेश्चन करते हैं हाउ मच, देन यू गेट द आंसर ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज एनफ फूड फॉर अस इन द कैंप. ठीक है, सो हाउ मच फूड? एनफ फूड. यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, कितना फूड था? हाउ मच फूड? देन यू गेट द आंसर एनफ. इज देयर मच ट्रैफिक ऑन द रोड्स टुडे? we were There were little pieces of chocolate left. Can you please spread some butter on the toast? He dropped all the food by mistake. So enough, much, little, some, all, ये जो bold words हैं, these are adjectives of quantity. ठीक है. Now adjectives of quality. Adjectives describing the shape, size, color, quality of nouns or pronouns are called adjectives of quality. ठीक है, तो जो shape बताएं, size बताएं, color बताएं, नाउन या प्रोनाउन का, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस. गीत इज सो क्लमजी दैट शी ऑलवेज ड्रॉप थिंग्स. फादर. सो दीज आर जो ये बोल्ड वर्ड्स हैं, लाइक मैग्निफिसेंट, क्लमजी, जायजेंटिक, हैवी, दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके. नाउ people say that Mrs. Popey lives in spooky house. Ruhana purchased bright lights for her beautiful house on Diwali. People say that Mrs. Popeye lives in a spooky house. Ruhana purchased bright lights for her beautiful house on Diwali. So these words are adjectives of
quality. Now go through the notes. Adjectives that show belonging and possessions are called possessive adjectives. अभी तक तो हमने जाना क्वांटिटी का मतलब जो मात्रा बताए, क्वालिटी का मतलब जो गुण दोष बताए, और possessive adjectives का मतलब हुआ कि जो belongingness को शो करे या फिर possession को बताए. For example, my father is a doctor. His book is on the table. Her house is behind the temple. Your friend is waiting for you. So my, his, her, your, what are these? These are possessive adjectives. Interrogative adjectives. तो interrogative adjectives किसे कहते हैं? Adjectives that ask a question. जाहिर सी बात है, जो interrogate करे, जो question करे, जो questioning word होते हैं उनको हम interrogative adjectives कहते हैं. These are same as interrogative pronouns but are used to describe a noun. ठीक है. For example, which painting is not yours? So painting is noun and which is describing about painting, right? So whose papers are these? Whose nails are dirty? What things have you bought from the market? So these words are interrogative adjectives. Demonstrative adjectives. Demonstrative adjective points out nouns and tell whether they are located near to or far from the speaker, or they answer the question which. I used to play this playground. ठीक है. तो ये जो दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, मतलब पास की चीज़ों को बताने के लिए और दूर की चीज़ों को बताने के लिए, पास की सिंगुलर चीज़ों को बताने के लिए और पास की दूर की चीज़ों को बताने के लिए हम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं. ठीक है. दिस जो होता है वो नियरनेस को दिखाता है एंड दैट जो होता है वो डिस्टेंस को दिखाता है. दिस का प्लूरल दीज हो जाता है और दैट का प्लूरल दोज हो जाता है. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. Distributive adjectives show that the object mentioned are to be taken separately or in a separate order. ठीक है. तो वो सेपरेट ऑर्डर को शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी. आई विजिट आंट रोजी एवरी फ्यू डेज, है ना. तो एवरी क्या हो गया? एवरी इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव. नाउ नीदर बॉय, ईदर, नीदर, ईदर, एवरी, ईच, इस तरह के वर्ड्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. नाउ adjectives of number. Adjective of numbers denote the number of nouns. They are further divided into definite and indefinite. ठीक है. A definite adjective of number marks the exact number of a noun. डेफिनेट नंबर्स होते हैं लाइक कि 1, 2, 3, या फिर जो उनको हम क्या कहते हैं? उनको कॉर्डिनल्स कहते हैं. और ऐसे नंबर जिसमें आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मीन्स जिसमें ऑर्डर आता है, एज इट इज़ क्लियर बाय द नेम कि ऑर्डर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक ऑर्डर में आ रहा है, तो इसको हम ऑर्डिनल्स नंबर कहते हैं. ठीक है. नाउ गो थ्रू द एग्जाम्पल्स. कावेरी हैज़ 2 sisters. Ananya stood first in the class. Indefinite numeral adjectives don't give an exact idea of the number and answer of the question how many. For example, several, many. यहाँ पे आपको ये नहीं पता चल पाता है कि एग्जैक्ट कितने हैं, इसलिए इसको इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स कहते हैं. नाउ गो थ्रू द वर्कशीट नंबर 1. बच्चों ये ऑली ऑक्टोपस है और इसमें आपको बताना है कि कहाँ कहाँ एडजेक्टिव है. तो चिली कैसी है? रेड है, तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. फ्लेवर कैसा है? स्पाइसी है, एडजेक्टिव हो गया. डिशेस कैसी? इंडियन. सो रेड, स्पाइसी एंड इंडियन, दीज आर एडजेक्टिव. नेक्स्ट, द टीचर आइडेंटिफाई दोज. तो दोज किस तरह का एडजेक्टिव है बच्चों? राइट इन चैट बॉक्स इफ यू नो. अ हंग्री बर्ड वॉज पेकिंग एट जूसी फ्रूट. तो यहाँ पे जूसी एंड हंग्री ये क्या है? एडजेक्टिव है. विच कार, विच इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ओके. नाउ add an adjective to each highlighted noun to make the sentences more interesting. अब आप the horse के आगे आप यूज़ कर सकते हैं the big horse, या फिर आप लिख सकते हैं the white horse. ओके. अब आप एक एडजेक्टिव forest के आगे भी यूज़ कर सकते हैं. अब आप forest के लिए लिख सकते हैं the big white और the white horse galloped across the dense forest और ग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है. आप फॉरेस्ट के आगे डेंस यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्रीन यूज़ कर सकते हैं. वॉट एवर यू लाइक यू कैन यूज़. द ट्रीज वर स्वेइंग इन द विंड. तो ट्रीज के आगे भी आपको एडजेक्टिव यूज़ करना है, तो टॉल ट्रीज लगा सकते हो, है ना. और विंड के आगे आप कूल विंड लगा सकते हैं, है ना. बोथ कैन बी करेक्ट. नाउ द विच, विच जो होती है यानी कि जादूगरनी, तो यहाँ पे आप लिख दो द बैड विच. कास्ट अ डेंजरस, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बच्चों? डेंजरस कर सकते हैं स्पेल के आगे, डेंजरस स्पेल. द मजिशियन परफॉर्म्ड, तो आप यहाँ पे द ग्रेट मजिशियन
द ग्रेट मैजिशियन परफॉर्म्ड ब्रिलियंट ट्रिक्स। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट हियर ब्रिलियंट, ट्रिक्स के आगे आप लिख सकते हैं ब्रिलियंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे बताना है कि एलेक्स जो एलिगेटर है, इसको आपको एडजेक्टिव बनाने में हेल्प करनी है। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं वो नाउन है, आपको उसको क्या बनाना है, एडजेक्टिव। अब चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चाइल्डिश, तो चाइल्डिश आपका यहाँ आ जाएगा इस वाले कॉलम में, ठीक है। आप इसमें ISH ऐड कर दीजिए, चाइल्डिश हो गया। इसके बाद में वाई में आप नेक्स्ट है पॉइजन, तो इसको पॉइजनस बना दीजिए, POISONOUS, पॉइजनस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रेंड, इसको फ्रेंडली में डाल दो, ठीक है। वट एवर हैड डन, आई एम जस्ट टेकिंग हियर, चाइल्ड हो गया हमारा, पॉइजन हो गया। अब फ्रेंड पे आते हैं, फ्रेंड को हम बना देते हैं फ्रेंडली, FRENDLY। फ्रेंडली के बाद है मेस, मेस को हम ले जाते हैं वाई के अंदर और ये हो जाएगा मेसी, ठीक है। दीज वर्ड्स आर डन। नाउ फैशन, फैशन को एबल में डाल देंगे तो ये हो जाएगा फैशनेबल, ठीक है, फैशनेबल। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्यूटी, इसको फुल में डाल दो तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुल, BEA, ब्यूटी FUL, ठीक है, ये हो गया ब्यूटीफुल। नाउ द नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल के बाद हमारा, अब हमारे पास ब्यूटी के बाद जो वर्ड है वो हो गया हार्म, इसको फुल में डाल दो, ये हो जाएगा हार्मफुल। ओके, नाउ हार्मफुल भी हो गया। अब इसको डाल दो एडोरेबल, ADORABLE, अडोरेबल हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज ऑनेस्ट, इसको किस में डाल देते हैं, इसको हम डाल देते हैं ऑनेस्टी में, HONESTY, ठीक है। नाउ रब दीज वर्ड्स अगेन। ओके, लव, लव को आप लवली बना सकते हैं, LOVELY। नेक्स्ट आउटलैंडिश, OUTLANDISH, ओके, आउटलैंडिश इज देयर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, आउटलैंडिश के बाद आपका हो जाएगा एडवेंचर, इसको आप एडवेंचरस कर दो, ADVENTUROUS, ओके, दिस इज एडवेंचरस, एडवेंचरस हो गया। अब हमारा आ गया पिंकिश, PINKISH, पिंकिश हो गया। पिंकिश के बाद मिस्टीरियस कर देते हैं, MYSTRIOUS, मिस्टीरियस हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा वो हो जाएगा जॉयफुल, जॉयफुल हो गया। ओके, नाउ दैट इज डन। इसके बाद हो जाएगा पीसफुल, तो हम पीस को कहाँ डाल देंगे बच्चों, पीसफुल में डाल देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा पीसफुल। नाउ कंफर्टेबल में डाल दो कंफर्ट को, यहाँ पर कंफर्ट, कंफर्टेबल ना, TABLE। नेक्स्ट आपका हो जाएगा टेस्ट, टेस्ट को कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोग टेस्टी बना सकते हैं, TASTY, ठीक है, ये हो गया टेस्टी। डर्टी को भी हम वाई के अंदर ले आएंगे, डर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डेंजरस, तो अस के अंदर आ जाएगा DANGEROUS, डेंजरस। नाउ फूल, फूल का हो जाएगा फुलिश, ISH के अंदर डाल दो इसको, FOOLISH। रिमार्क को ले आइए एबल के अंदर और ये हो जाएगा रिमार्केबल, रिमार्क ABLE, रिमार्केबल। नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मंथली, MONTHLY, okay, so I hope it's clear to all of you. Now I'm moving to the next slide. Okay, now children, so we have completed this chapter. I think you all have enjoyed. If you have any doubt, you can type in chat box. Thank you so much for watching. Bye everyone.